Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss regarding the theory of meanings that is presented by Richards and Ogden. The full name of Ogden is Charles Key Ogden and I.A. Richards. These are the two persons who presented the theory of meanings. Charles Key Ogden and I.A. means Ivor Armstrong Richards. Ivor Armstrong Richards. First, there is an introduction regarding Charles Key Ogden. Charles Key Ogden was an English linguist, philosopher, and writer. It is described as a polymath. Polymath means a person who has encyclopedic learning, but also an eccentric and outsider. He took part in many ventures related to literature, politics, the arts, and philosophy, having a broad effect, particularly as an editor, translator, and activist on behalf of a reformed version of the English language. He is typically defined as a linguistic psychologist and is now mostly remembered as the inventor and propagator of basic English. Now we see the introduction regarding Richards. During the 1930s, Richards spent much of his time developing basic English, a system originated by Ogden that employed only 850 words. He was born on February 26 in 1893, Cheshire, England. The subject of study was literary criticism. His notable works are Practical Criticism, Principles of Literary Criticism, The Theory of Meaning. What is theory according to Ogden and Richards? Unlike traditional scientists, Ogden and Richards take a completely different approach in developing their theory. Rather than focus on a single idea upon which to base the theory, they deconstruct the idea into many parts, thus creating a multi-faceted theory to explain communication behavior. The facts explored by Ogden and Richards include meaning theory, definition theory, symbol theory. तो रिचर्ड और जो ऑगडन की अप्रोच थी toward the meanings that are being used in communication, that was quite different as compared to the previous writers, because they deconstruct the idea into different parts. Deconstruct का मतलब है उन्होंने उसको different parts में divide कर दिया, और इस तरीके से जो उन्होंने थ्योरीज पेश की उसमें मीनिंग थ्योरी थी, डेफिनेशन थ्योरी थी और सिंबल थ्योरी थी. semantic triangle.
The symbol R form refers to the linguistic elements. जब हम सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल से मुराद फॉर्म होती है जो कि लिंग्विस्टिक एलिमेंट है और इससे मुराद किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं. The referent refers to the object in the world of experience. रेफरेंट जो है उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है जिसके लिए हमने कोई वर्ड इस्तेमाल किया होता है. थॉट और रेफरेंस रिफर टू कॉन्सेप्ट. जब हम थॉट की बात करते हैं तो ये किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करते हैं. यानी जब किसी चीज़ के बारे में कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो लिसनर के माइंड में किस तरह का इमेज क्रिएट होता है, क्या कॉन्सेप्ट बनता है. द सिंबल आर अ वर्ड signifies things by virtue of the concept associated with the form of the word in the minds of the speaker. अब उस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है कि जब आप कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं या आपके सामने कोई वर्ड लिखा हुआ होता है तो ये रीडर के माइंड में है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एक्सपीरियंस उस वर्ड के हवाले से क्या है. तो वैसा ही कॉन्सेप्ट जो है वो रीडर के माइंड में बनेगा. एंड द कॉन्सेप्ट लुक्ड एट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड. वही जो कॉन्सेप्ट रीडर के माइंड में बनता है, लिसनर के माइंड में बनता है, वही उस वर्ड का मीनिंग होता है और वही रीडर का जो माइंड है वही उसका मीनिंग जो है वो क्रिएट करता है. थॉट हमारे पास, अब इसका ट्रायंगल देख लेते हैं. थॉट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सिंबल हमारे पास वर्ड है, रेफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है. The theory of meaning is given by Ogden and Richards in 1927. Richards analyzed the human communication, how humans communicate and why they choose the method they do, and co-formulated a theory which is named as the theory of meaning. This theory is not only define that how humans give meanings to their language and the approaches that humans take when communicating, but also to understand that how communication lost if it will not done correctly. इस जो मीनिंग की थ्योरी है जो कि ऑगडन और रिचर्ड ने पेश की, इसमें उन्होंने ह्यूमन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस कम्युनिकेशन सिस्टम में वो मीनिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं और अगर वो कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया है तो उस जो वर्ड का मीनिंग है जो कि लिसनर और रीडर के माइंड में क्रिएट होना है वो करेक्ट नहीं होगा. Definition theory. In order to correct the problem of meaning theory, Richards and Ogden developed another theory, the definition theory. यानी मीनिंग थ्योरी को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, उसको सही तरीके से कन्वे करने के लिए रिचर्ड और ऑगडन ने डेफिनेशन थ्योरी प्रेजेंट की. अब ये डेफिनेशन थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन अ पर्सन स्पीक्स, ही आर शी चूजेस मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. कि एक ही वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट पीपल के लिए इन डिफरेंट सिचुएशन. तो अब रीडर ने
या लिसनर ने उसका मीनिंग कैसे गेट करना है। द बेस्ट टर्म टू डिफाइन इट इज़ एम्बिग्यूटी बाय वन। समटाइम कोई वर्ड एम्बिग्यूअस होता है और उसका मीनिंग जो है वो सही तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता। To resolve the ambiguity problem, we have to define things with the relation to different things are to define the various terms and concepts. तो एक चीज़ के मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें उस चीज़ का जो रिलेशन है दूसरी चीज़ के साथ, उसको हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या हो सकती है। डेफिनेशन थ्योरी की एग्जाम्पल, a good example is text. Text is meaningless by itself, as it draws no relation by outside itself. However, we combine text with any particular or other words, only then we create a workable definition. And this is the fundamental principle behind Richards and Ogden theory. अब देखें, टेक्स्ट कोई भी है, itself text is meaningless. It depends on the reader and the listener what they are getting meaning from that text. उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग उस टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। बजाते खुद टेक्स्ट का कोई मीनिंग नहीं होता है। द थ्योरी ऑफ सिंबल्स। Finally, Ogden and Richards developed the theory of symbols. According to this theory, symbols are arbitrary by themselves. कि सिंबल जो हैं वो आर्बिट्ररी होती हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। When they merged with each other, then they create a meaning by using ideas which is being expressed. जब उन सिंबल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है तो तब वो हमें मीनिंग देती हैं जो कि उस कन्वर्सेशन में, उस आइडिया में एक्सप्रेस किया जाता है। Ogden and Richards stated that words give different meanings according to context in which they used because they are variable. अब देखें कि एक ही वर्ड है, हम उसके डिफरेंट मीनिंग लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वर्ड बैंक लेते हैं। अब बैंक का डिफरेंट हमारे पास जो है वो मीनिंग हो सकते हैं। बैंक एक इंस्टीट्यूट के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट हमारे अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट हमारे मनी रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। दूसरा बैंक जो है वो एज को कहते हैं, ऑफ द रिवर, दरिया के किनारे को कहते हैं। तो अब ये रीडर पे है, लिसनर पे है कि वो उस बैंक का मीनिंग किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे स्टेट है, स्टेट के डिफरेंट मीनिंग होंगे डिफरेंट कंटेक्स्ट में। तो ये रीडर और लिस्टर के एक्सपीरियंसेस पे है कि वो उसका सही मीनिंग गेट करता है या उसके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है मीनिंग के हवाले से। तो एक्चुअली वर्ड्स जो होते हैं उनके अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, ये हमारे माइंड में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मेटाफर। Richards and Ogden use metaphor to define meaning. मेटाफर भी एक अहम एलिमेंट है, ये टूल है दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग्स। मेटाफर हेल्प्स
in the creation of definitions by making a link between words and ideas, by human experiences which he or she does and the audience shared. अब मेटाफर में भी वही चीज़ आएगी। मेटाफर कब आपके लिए हेल्पफुल होंगे मीनिंग क्रिएट करने के लिए? जिस तरह के मीनिंग उनके आप तक मुंतकिल किए गए होंगे, आपके साथ शेयर किए गए होंगे डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में। उन्हीं मीनिंग को सामने रखते हुए आप नेक्स्ट कन्वर्सेशन में उसी तरह का मेटाफर का मीनिंग जो है वो क्या करेंगे, आप गेट करेंगे। Semantics triangle. In order to define direct relation between thoughts and symbols, Richards and Ogden created the semantic triangle. अब मीनिंग के हवाले से एक ट्राइएंगल है कि किस तरह से मीनिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। सबसे पहले सिंबल है, फिर हमारे पास जो है वो रेफरेंट, और फिर हमारे पास थॉट। सिंबल जो है कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी अटरेंस हो सकती है, और रेफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, और थॉट जो है जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है किसी भी रीडर या फिर लिसनर के माइंड में। थ्रू सेमांटिक्स ट्रायंगल, Richards and Ogden believe that they have found a way to connect all the words with their meanings. कि ये जो ट्राइएंगल है, सेमांटिक ट्राइएंगल, ये वर्ड्स के मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने का बेस्ट वे है, और जो मीनिंग है वो कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर क्लियर होते हैं रीडर या फिर लिसनर के माइंड में। अप्रोचेस टू वर्ड मीनिंग। देयर आर 3 approaches. First is referential approach, that means analytical approach. Second is functional approach, that means contextual approach. Third is operational approach, that means information oriented approach. Approaches to analyzing meaning. Referential approach to meaning, functional approach to meaning, operational approach to meaning. Type of meaning of words. 2 approaches to the content fast units. First we see what is functional approach. Functional approach studies the functions of a word in speech. कि किसी भी स्पीच में एक वर्ड जो है वो किस तरह से फंक्शन करता है। मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज स्टडीड थ्रू रिलेशन ऑफ इट विद अदर लैंग्विस्टिक यूनिट्स। कि किसी भी वर्ड के जो मीनिंग होते हैं वो तब हमारे लिए आसान हो जाते हैं जब हम इसका रिलेशन देखते हैं दूसरे लैंग्विस्टिक यूनिट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू मूव, ये क्या है, हमारे पास एक फ्रेज़ है। अब इसको हम डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंटेक्स्ट। फर्स्ट है वी मूव, सेकंड है मूव अ चेयर। देखिए वर्ड तो वही रहा है मूव, लेकिन उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है, और यही जो है वर्ड की फंक्शनल अप्रोच कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ स्मिथ, स्लो मूवमेंट। अब दोनों जो हमारे पास फ्रेजेस हैं उसमें मूवमेंट को डिफरेंट वे से जो है वो यूज़ किया गया है। प्रिंसिपल,
इसी फंक्शनल अप्रोच का देखते हैं। द मीनिंग ऑफ अ लैंग्विस्टिक यूनिट कैन बी स्टडीड only through its relation to other linguistic units. It is based on analysis of various contexts. For example, arrive at and arrive in. कहीं पे हमने arrive at लगाना होता है, कहीं पे हमने arrive in लगाना होता है। अगर आप किसी मकाम पर हैं तो आप arrive at लगाते हैं। अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं तो फिर arrive in इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से क्या होगा, डिफरेंट कंटेक्स्ट में हम इसको डिफरेंट वे में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास अराइवल अर्ली है, लेट, सडन, एटसेट्रा। द ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशन इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ड, द पोजिशन ऑफ अ वर्ड इन रिलेशन टू अदर वर्ड्स। कि वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप देखा जाता है, फिर उसके मीनिंग जो है वो बेहतर तरीके से कन्वे होते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? द मिनिमम स्ट्रेच ऑफ स्पीच नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू डिटरमिन विच ऑफ द पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ अ पॉलीसेमेंटिक वर्ड इज यूज्ड। पॉलीसेमेंटिक का भी वही मतलब है जो पीछे मैंने आपको बताया है। जस्ट लाइक बैंक है हमारे पास स्टेट है, तो ये डिफरेंट किस्म के वर्ड है। मीन्स है, तो इसके डिफरेंट मीनिंग होंगे डिफरेंट कंटेक्स्ट में। रेफरेंशियल अप्रोच। देयर आर 3 components connected with meaning: the sound form of the linguistic sign, the concept underlying the sound form, the referent, the part of aspect of reality to which the linguistic sign refers. The referential model of meaning, basic triangle, इसका भी वही है। हमारे पास कॉन्सेप्ट है, साउंड जो है वही फॉर्म होती है, वर्ड होता है, रेफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। रेफरेंशियल, फंक्शनल एंड इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल से मुराद ऑपरेशनल है। रेफरेंशियल अप्रोच, कॉन्सेप्ट, a place to live, normally a building. Sound or written symbol, अब बिल्डिंग की जो रिटन फॉर्म होगी उसको हम सिंबल कहेंगे, साउंड कहेंगे। A real object of referent, existential, यानी उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसको हम क्या कहेंगे? रेफरेंट कहेंगे। Meaning then was described as a relationship between the word and the notion, or the word and the object. तो जो सिंबल आपके सामने होगी या जो साउंड प्रोनाउंस की जाएगी, उसका कनेक्शन आपके माइंड में क्या है, आपके माइंड में उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उस सिंबल के हवाले से, उस साउंड के हवाले से। वही जो इमेज आपके माइंड में बनेगा, आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वही चीज़ का क्या होगा, उस वर्ड का या सिंबल का या साउंड का एक्चुअल मीनिंग होगा। ओके डियर लिसनर्स, व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज लेक्चर regarding the theory of meaning that was presented by Richards and Ogden. Inshallah, we will see in the next lecture with some other new topic. Till then, Allah Hafiz.